Okay. Okay. So, an accounting firm is performing the year two audit of DDR Corporation, a non issuer. Consider the following: the auditor will rely on test of control for sale and cash receipt and purchasing and cash disbursement. The amount in the potential misstatement column in the table below represent the potential misstatement as a result of the identified control deficiency. See, the auditor will assess control risk as high for all controls. The materiality is given is $750,000. Okay, so for each situation, you have to first tell what is the deficiency type, like whether it is the deficiency in design or in operation. Then evaluation of deficiency, ki whether it is a significant deficiency or a material weakness. Then communication requirement. Okay. Okay. So potential misstatement जो amount given है that basically represent the potential misstatement as a result of the identify कि इस deficiency की वजह से कितनी misstatement होने के chances है. Okay, so first ये समझ में आया या read करना है? एक बार मैं रीड कर लेती हूँ. Okay, देख लो. Yes. Are you saying something? नहीं नहीं. हो गया रीड मेरा. Okay, so first is the controller review and approve consolidating general entries during the month end close. However, the auditor determined that the year end December consolidating general entries were not properly reviewed. So there are no compensating controls to mitigate the effect of the this control deficiency. So basically, controller जो है review तो करता है, but according to the auditor कि जो review किया गया है it was not properly done. और उसके रिगार्डिंग कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल्स भी नहीं है, मींस कि कोई अदर कंट्रोल जो उस डेफिशिएंसी को हटा सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक, whether it is the deficiency in design and in operation? डिजाइन. Okay, so deficiency is in design or operation? डिजाइन. Sure. हाँ. Okay. बट अगर ध्यान से आप पढ़ोगे कि रिव्यू तो कर रहे हैं वो, बट रिव्यू इज नॉट डूइंग प्रॉपरली. They are not doing properly. They are doing, but not doing properly. So it means design तो है, like you have made proper procedures, but वो effectively work नहीं कर रहे. So ऑपरेशन don't में you तो think? एग्जीक्यूशन पार्ट में. Yes, कि Okay. operate effectively नहीं हो रहे. मतलब अगर इफ एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो ऑपरेशन में कंसिडर होता है, डिजाइन में नहीं. Yes, ठीक है. डिजाइन का मतलब है कि वो बनाए ही नहीं है प्रोसीजर्स या गलत बनाए हैं. ठीक है. और ऑपरेशन का मतलब कि वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे. ओके. Evaluation of deficiency. So which type of deficiency is there? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, मटेरियल वीकनेस नहीं है.
सिग्निफिकेंट भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है। मटेरियल तो एक मिनट, वो अमाउंट मुझे देखना है कि वो मटेरियल डेफिशिएंसी वीकनेस है या नहीं। ओके, सो मटेरियलिटी हाँ आपकी $750,000 है। हाँ, तो ये मटेरियल वीकनेस हुआ क्योंकि हमारी उससे ज्यादा है। ओके, सो कम्युनिकेशन, इज द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, और इफ यस, सो कब कम्युनिकेट करना चाहिए आपको? स्क्रॉल डाउन। नीचे नीचे स्क्रॉल करना। अच्छा, फर्स्ट डिसाइड बिटवीन ओरल एंड रिटन। और आपको कम्युनिकेट तो करना ही है, बिकॉज इट इज अ, हाँ, आप हर टाइप की डेफिशिएंसी वैसे तो कम्युनिकेट करते हो। अभी आपकी मटेरियल है, ओरल कम्युनिकेट करोगे या रिटन में? रिटर्न में करेंगे। ठीक है, तो रिटन में, सो ओरल वाले ऑप्शंस कट कर दो। अब आओ हाँ, रिटन में। रिटन में नो लेटर देन 60 days, oral or written, there is an option, or is it compulsory to do in written communication? रिटर्न करना ज्यादा वो होता है। Yes, तो रिटर्न में मैंडेटरी है आपको कम्युनिकेट करना, बिकॉज इट इज अ हाँ, मटेरियल वीकनेस। तो अभी आपके रिटर्न वाले ऑप्शन सिर्फ दो ही बचे हैं, 90 days या 60 days। तो क्या डेडलाइन होती है आपकी कम्युनिकेट करने की? 60 days। यस। ओके, डन। हाँ। Okay, so next, the company does not have a process for matching invoices with purchase order. कंपनी ने ऐसा कोई प्रोसेस बनाया ही नहीं है कि आपके जो भी परचेज ऑर्डर हैं उसके इनवॉइसेस मैच किए जाएं और रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएं प्रायर टू द पेमेंट, बिकॉज आप पेमेंट करने से पहले थ्री वे मैच करके चलते हो कि कितना ऑर्डर किया, कितना रिसीव हुआ और कितने का इनवॉइस बना हुआ है। लेकिन कंपनी के पास एज सच कोई प्रोसेस ही नहीं है, सो देयर आर नो अदर क्वालिटेटिव फैक्टर दैट वुड अफेक्ट द डेफिशिएंसी वापस इवेल्युएशन। रिपीट करना, तो लास्ट लाइन क्या बोला आपने? देयर आर, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है ना? हाँ हाँ। ओके, सो देयर आर नो अदर क्वालिटेटिव फैक्टर दैट वुड अफेक्ट द डेफिशिएंसी इवेल्युएशन। सो और कोई आपके क्वालिटेटिव फैक्टर एज सच नहीं है आपके, लेकिन कंपनी के पास कोई थ्री वे मैचिंग प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ कंपनी ने। तो ये डिजाइन रिलेटेड डेफिशिएंसी Yes. है। कि जब बनाया ही नहीं तो वो वर्क क्या करेगा? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट, इसकी वजह से 725,000 की मिसस्टेटमेंट हो सकती है और आपकी मटेरियलिटी इतनी दे रखी है 750। ये सो व्हाट? मटेरियल वीकनेस नहीं है। यस, मटेरियल तो नहीं है, लेकिन इट क्या इज अ डेफिशिएंसी। इज अ डेफिशिएंसी तो है, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है या सिर्फ डेफिशिएंसी ही है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ओके, सो कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंट का कैसे कम्युनिकेशन करते हो? ओरल और रिटर्न। सिग्निफिकेंट भी आप रिटर्न में ही कम्युनिकेट करके चलते हो? ठीक है। अभी बट यहाँ पे रिटर्न में दो ऑप्शन थे। या 90 और 60 days? नहीं नहीं, ऊपर भी एक और है। इन रिटर्न बाय द ऑडिट रिपोर्ट रिलीज डेट। अच्छा बताओ, रिपोर्ट रिलीज डेट के साथ ही कम्युनिकेट करते हो या 60 या 90 days के अंदर अंदर? ये तो 60 days में कर सकते हैं यस। क्योंकि इतनी मेजर डेफिशिएंसी नहीं है। Okay, so next is there is no physical security for a small portion of company's inventory, and a warehouse employee stole 10,000 of unsecured inventory in year one. The value of inventory is inconsequential, but to the company's inventory, there are no other qualitative factor that would affect the deficiency evaluation. Okay, कोई कंपनी ने कोई फिजिकल सिक्योरिटी ही नहीं रखी हुई इन्वेंट्री पर, हाँ। so is it a deficiency in design, operation or none? ऑपरेशन। Okay. भाई जब रखी नहीं हुई तो वर्क कौन करेगा? कोई फिजिकल सिक्योरिटी है ही नहीं।
ठीक है, So मतलब is it a डिजाइन deficiency in design or operation? डिजाइन। Design. हाँ हाँ। ठीक है, और 50,000 हो सकती है इससे मिस स्टेटमेंट, सो इट इज अ मटेरियल सिग्निफिकेंट और deficient. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है, और ओरल और रिटर्न in return no later than 60 days following the financial statement date. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, आर तो यू श्योर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट क्या होती है? ये ऑडिट रिपोर्ट रिलीज डेट से अलग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई थी उस डेट से आप कंसीडर करते हो या रिपोर्ट रिलीज डेट से कंसीडर करते हो डेट? हम रिपोर्ट रिलीज डेट से कंसिडर करते हैं। यस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो रोल ही नहीं रहा, ऑप्शंस तो मत देखो। तो वही इन रिटर्न नो लेटर देन 60 डेज फॉलोइंग द ऑडिट रिपोर्ट रिलीज डेट। ओके, रिपोर्ट रिलीज ना, ठीक है, श्योर। ओके, नेक्स्ट. The payroll clerk created fictitious employees in order to collect unauthorized payroll check. So he has created some fictitious employee, जो employee exist भी नहीं करते उनको create करके उनके payroll check collect कर रहा है. The misappropriated funds were more than inconsequential, so there are no other qualitative factor that would affect the deficiency evaluation. Okay, बताओ. fictitious employee create कर रखे हैं और they are taking their basically check. So ऑपरेशन। this is a deficiency in operation. ऑपरेशन Okay, so next deficiency significant है, material है, या आपकी अमाउंट ये दे रखा है मिस स्टेटमेंट का? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ये, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। Okay, so same. ठीक है, सेम। Okay, कुछ चेंज करना है या इससे शुड तो आई? मुझे ये फर्स्ट वाला वापस एक बार देखना है। हाँ, देख लो. हाँ ठीक है, बराबर है। कि 75. Okay. डिजाइन में मुझे लग ही रहा था कि सेग्रीगेशन नहीं है ड्यूटीज का, बिकॉज जो क्रिएट कर रहा है वही कलेक्ट कर रहा है. ओके, सो लास्ट वन पहले देखते हैं. आपकी डिजाइन में ये डेफिशिएंसी थी, मींस आपके कंट्रोल्स ही प्रॉपर नहीं बनाए गए, कि बिकॉज जो एम्प्लॉय आपका क्रिएट कर रहा है ही इज ऑल्सो कलेक्टिंग, कस्टडी और लाइक रिकॉर्डिंग सेम पर्सन के हैंड में आ हाँ रही है. सो दिस इज अ डेफिशिएंसी इन डिजाइन, सेग्रीगेशन नहीं है ड्यूटीज का. बाकी सही है आपका, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो है ही कि एक फिक्टिशियस एम्प्लॉयज क्रिएट हो रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर. Okay, so next was related to inventory. So this is a obviously deficiency in design, but it is not a significant deficiency. इट इज ओनली अ डेफिशिएंसी। Yeah, कंट्रोल। it should be. Um, 1 minute. Yes, it is a deficiency, and no formal communication is necessary because the amount is very, very small.
So because no control is in place, this represent the deficiency in the design of internal control. Evaluation करें तो control deficiency does not rise to level of significant because amount बहुत कम है, so that is why they are not considering it significant enough. And since it is a not a significant in amount is very low, so there is no as such formal communication is required. Okay. Okay, so let's do the next question. So this is a management representation letter. So Bay Company is a small retail business that specialize. अच्छा मुझे ये बताओ कि I have not selected these question actually, मैं तो randomly उठा रही हूँ. So अगर हाँ आपको like if you want कि अगर management representation letter से discuss करना है तो then we can do, otherwise we can do next question. नहीं ये करते हैं, ये मैंने पढ़ा हुआ है. ठीक है. ओके सो लेट्स डू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर से है. बे कंपनी इज अ स्मॉल रिटेल बिजनेस दैट स्पेशलाइज इन सेलिंग हैंडमेड ज्वेलरी and clothing. They have been in business for several years and have built up a loyal customer base, but they are now looking to expand their operation and secure funding from investors. To do this, they need to have their financial statement reviewed by independent auditor. The owner of Bay Company, Jeffrey, has never gone through a financial review before and is a little nervous about the process. He meets with the auditor, Henry, and they go over the scope of the review and the procedure that will be performed. That will be performing limited procedure to obtain assurance that there are no material modification that to be made to the financial statement. Okay, they are taking the review. So Henry also explained that he will be focusing on areas such as cash balances, account receivable, and inventory. To get the process started, Henry requests a management representation letter from the Jeffrey. Read the management representation letter in the table below. Answer the following questions. Okay. So you have to, like in response column, you have to select the most appropriate answer choice. Then in the this codification column, you have to provide the relevant authority to support your response. Okay. So what is the purpose of representation letter that Henry prepared according to the review standard? Okay. So ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रखा है और ये कॉडिफिकेशंस दे रखे हैं. ठीक है. सबसे पहले आपको बताना है कि ये रिप्रेजेंटेशन लेटर बेसिकली पर्पस क्या है इस रिप्रेजेंटेशन लेटर का. ठीक है, ये मैं खुद पढ़ लेती हूँ, आप रीड मत करो. ओके. स्क्रॉल करना नीचे. ओके. मम्मी वो दे दो. कोकोनट ऑयल.
जब जिम में पार्ट लिया वो लेना जिसमें वो डाल के रखा होगा क्या डाल के? ये चला कुछ तो कॉम्प भी दे देना। ओके ये पढ़ के एंगेजमेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पढ़ के हो गया। ठीक है। So first you have to tell what is the like purpose of this representation letter that Henry provides according to the review standard. So to provide the auditor with information about significant, आप इसमें significant deficiencies communicate करते हो representation में, या to confirm that information and access to record necessary to complete have been provided, to provide the assurance that the financial statement are free from material misstatement, to enable the auditor to obtain the same level of assurance that would be obtained in an audit. Option 2 to provide ये okay sure. हाँ Okay, so next is what is the primary objective of a review engagement? So review की objective क्या रहती है? Review में आप क्या करके चलते हो? to provide limited assurance. To provide limited assurance. Okay. Okay, so next, ठीक है, अब इसकी codifications देखते हैं. Purpose और objective कहाँ पर mentioned है? एक मिल गया, ये रहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 90.08. ठीक है, और सेकंड रिव्यू की ऑब्जेक्टिव्स कहाँ मेंशन है? नाइन्टी 90.03. 90.03. ओके ठीक है, और कुछ नीचे? ओके सो 90.08. 90.08. ओके अभी तो आप 90.0, अच्छा वो वो तो सेकंड का है. ठीक है सॉरी 90.03. ओके ठीक है, लेट मी सबमिट. यस करेक्ट, आसान था ये तो बहुत ही, है ना? हाँ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपको बताना है कि इनका सैंपल साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ओके. हाई असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क, अपने इनहेरेंट रिस्क को हाई एक्सेस कर रखे हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है. इनहेरेंट रिस्क मतलब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई लेकर चल रहे हो. सो दैट मींस यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल और डिक्रीज द सैंपल साइज. Increase the sample size. लो असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क को लो एक्सेस करके चल रहे हो कि कंट्रोल रिस्क तो बहुत कम है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं मतलब. Smaller sample size. Smaller. Low assessment of risk associated with other relevant substantive procedure, कि बाकी substantive procedures के रिगार्डिंग अपने रिस्क लो एक्सेस करके चल रहे हो. Smaller sample size. Smaller. High expected frequency of misstatement, misstatement आपको बहुत दिख रही है. Larger sample size. Sorry. Smaller expected value, स्मॉल मिसस्टेटमेंट आपको दिख रही है, स्मॉलर एक्सपेक्टेड वैल्यू.
ऑफ मिसस्टेटमेंट, स्मॉलर या लार्जर यहाँ? Smaller. ठीक है, लार्ज मेजर ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट फॉर द अकाउंट. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट means So the no, misstatement you can tolerate is high. तो वो जितना है उतना ही रखेंगे ना, उससे कोई सैंपल साइज पे डिफरेंस नहीं बट पड़ेगा. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट आपकी सैंपल साइज को अफेक्ट करके चलता है, क्योंकि जितना ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो डेट मीन्स उतना ज्यादा आप उतनी कम टेस्टिंग कर सकते हो, कि उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपकी टॉलरेबल लिमिट ज्यादा है. तो बट अगर स्मॉलर आपकी सैंपल टॉलरेबल लिमिट कम है तो आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा. साइज. Okay. Use of statistical sampling versus non-statistical sampling. क्या मेथड चेंज करते हो तो क्या सैंपल साइज अफेक्ट होगा? नहीं. कि सबमिट या कुछ चेंज करना है? सबमिट. ओके, सो 100% करेक्ट. ठीक है, हाँ. एनी डाउट? नहीं. So let's do the next simulation. Okay, so this is related to audit procedure or action. So general entry testing. Okay. The auditor of a green pan obtained the general entries as a part of the year 2 audit. For each of the general entries in the table, click the associated audit procedure or action and select from the menu provided the most appropriate audit procedure to perform or action to take regarding the transaction represented by the general entry. Okay, so ये transaction general entry testing कर रहे हो basically. So first is general entry was made by controller on December 31st को क्या एंट्री बनाई गई कि सैलरीज और वेजेस एक्सपेंस, यानी एक लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है किसके रिगार्डिंग? सैलरीज एंड वेजेस के रिगार्डिंग. एक्सपेंस दिखा के लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है December 31st को. ओके. टू अकाउंट फॉर कंपनसेशन फॉर ईयर 2 टू बी पेड इन ईयर 3. कि कुछ ऐसी मतलब कंपनसेशन है जो अगले साल आप पे करने वाले हो, लेकिन उसकी लाइक अक्रूवल आपने ईयर 2 में ही बना लिया है, कि वो Okay. ईयर 2 से रिलेटेड है. लाइक आप नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप उसे पे करने वाले हो, तो इसलिए 31st को ये एक्सपेंस क्रिएट कर दिया. तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या कर सकते हैं? इस So discuss with the HR and obtain employer permanent file to verify hire date and recalculate year 1 and year 2 salaries. Obtain current market value of subsidiary stock. Obtain financial statement of subsidiary. Management bonus plan and eligible employer list and recalculate expense. Physical examine the asset. Confirm to the controller. Adjusting entry to debit prior year. वो Okay. ऊपर के ही दो ऑप्शन लग रहे हैं, वो जो दो एम्प्लॉय रिलेटेड. Management bonuses. नहीं, मैनेजमेंट बोनस नहीं था फर्स्ट वाला. Okay. अच्छा, आप ईयर 2 के लिए बना के रख रहे हो, तो इसमें आपको नहीं लगता एचआर का क्या ही रोल रहेगा? बिकॉज होस्ट वो तो एम्प्लॉयज तो वी डोंट नो ना कि कब हायर हुए हैं, तो उसका अब से क्या रिलेशन कि जब भी हायर हुए हो. यू हैव टू बेसिकली चेक ना कि ईयर 2 के लिए जो बेसिकली वो बोनस या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, सो क्या दे आर एलिजिबल फॉर दिस बोनस, और क्या वो रेट ठीक लगाया है या मतलब कैलकुलेशन प्रॉपर की है या नहीं. So don't you think this would be the more relevant answer? हाँ, लग रहा है. Okay, कोई और? नहीं तो. Okay, so next. Next is general entry related to fixed asset. So accumulated depreciation to the depreciation. एक expense create कर रखा है related to, sorry, reverse कर रखी है entry. आपके डेप्रिसिएशन कम कर रखे एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कम कर दिया है. सो टू एडजस्ट द मशीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस.
तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रखा है। डेप्रिसिएशन रिवर्स करके रखा है, उसको आप एक्सप्लेन करो ना। जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो? एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर देते हो। बट हाँ। यहाँ पर मे बी ड्यू टू सम एरर और कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो ये डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। कि जैसे सपोज पहले $100 का डेप्रिसिएशन दिखाया था, तो अब उसे रिवर्स करने के लिए $20 कम कर दिए। ओके। कि 80 होना चाहिए था, उन्होंने 100 दिखा रखा था, तो वो एडजस्टिंग के लिए $20 कम कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या कर सकता है? ऊपर स्क्रॉल करना है क्वेश्चन ऑप्शंस में। यस। सो HR सब्सिडरी सब्सिडरी ये तो है नहीं आपके। असेट टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, यहाँ से चेक कर लो। क्या फिजिकली एग्जामिन करोगे उस असेट को, या कंट्रोलर से डिस्कस करोगे कि कोई चेंज तो नहीं है? कंट्रोलर से डिस्कस करूंगी। और ठीक है, और कोई? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है। A general entry was made by controller on December 31st. कंट्रोलर ने एंट्री की है इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस टू इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू मैच्योरिटी। सो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हो। आपने हेल्ड टू मैच्योरिटी से उठाकर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डाल दिए। ओके, ये मुझे थोड़ा समझा नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट की 3 क्लासिफिकेशन होती है ना, कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ है आपने, या हेल्ड फॉर मैच्योरिटी रखा हुआ है, या अवेलेबल फॉर सेल रखा हुआ है। सो नहीं, ये आइडिया बेसिकली नहीं। आप क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हो। ओके, ये फार में आता है आपका। अब थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो? या ओके, सो यू हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लाइक किसी चीज में। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, मतलब आपने खरीदी और आप बेच दोगे, कि उस हाँ। पर्पस के लिए खरीदी बेची, तो ये होती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। कि ठीक है। जिससे हम फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और है ना जो भी गेन या लॉस होता है अनरियलाइज या रियलाइज इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ओके। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अवेलेबल फॉर सेल, मतलब आपने होल्ड कर रखी है इन्वेस्टमेंट, कि लाइक यू आर श्योर कि आप कभी ना कभी उसे मतलब बेच दोगे, कि आप उसे मेच्योरिटी तक नहीं होल्ड करके रखोगे, कि यू विल सेल इन सम टाइम इन द फ्यूचर। तो वो होती है आपकी अवेलेबल फॉर सेल। अगेन उसे भी फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हो, लेकिन जो भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होता है वो उसे आप वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाकर चलते हो। ठीक है। ओके। हाँ। जबकि आपकी लाइक हेल्ड टू मेच्योरिटी होती है, वो आपकी लाइक जो भी आपने मतलब कॉस्ट पर खरीदी है उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है, और उसे अमोर्टाइज किया जाता है, कि जिसे आप पूरी मेच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हो, मतलब 10 साल की है, 5 साल की है, कि अगर आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले टिल मेच्योरिटी, तो वो हेल्ड टू मेच्योरिटी होती है, जिन्हें आप अमोर्टाइज करके चलते हो। समझे? तो हाँ। ये क्लासिफिकेशन अब चेंज हो रही है। सो क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, तो असेट आपकी यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर रखे हैं, तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या कर सकते हैं? सो दिस इज नॉट चेंज इन एस्टिमेट, कि एस्टिमेट तो चेंज हुआ हाँ। नहीं बेसिकली। और क्या कर सकते हो आप? Review board meetings for change in classification of long-lived assets. ओके, रिव्यू बोर्ड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या
चेंज इन क्लासिफिकेशन, चेंज इन क्लासिफिकेशन आपने बोला ना? हाँ. Okay. So next question is related to record the proposed audit adjustment from year one. So basically year one से की ऑडिट में जो कोई एडजस्टमेंट बोली गई थी वो रिकॉर्ड की गई है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं आपके। जनवरी 1 को ये एंट्री दी गई है जो आपकी एडजस्टिंग एंट्री है, जो ईयर वन में ऑडिटर ने बोली थी करने के लिए। Okay. So this is related to the year one audit adjusting entry. ऊपर स्क्रॉल करना. Yes, sure. प्रपोज एडजस्टिंग एंट्री टू डेबिट प्रायर ईयर. ये तो रिटेन्ड अर्निंग्स है. ऊपर स्क्रॉल करो. Okay. ये तो HR सब्सिडरीज ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, एस्टिमेट भी नहीं। पर ये रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं हुई ना, खर्चा है ये तो. एक्चुअल में क्या होता है कि रिटेन अर्निंग्स में हम एडजस्टमेंट करके चलते हैं, कि जैसे अगर आपने प्रायर ईयर कोई नंबर चेंज कर रहे हो, सो हाँ. उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपकी इनकम स्टेटमेंट पे जाएगा, और उसका हाँ. इफेक्ट अगर बैलेंस शीट में देखें तो नेट इनकम कहाँ जाके क्लोज होती है, रिटेन अर्निंग्स पे। हाँ. सो हम एडजस्टमेंट उसकी रिटेन अर्निंग्स में करते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब आप ईयर वन में तो कर ही नहीं रहे एडजस्टमेंट, ओके. ईयर वन की एडजस्टमेंट ईयर टू में कर रहे हो। तो रिटेन अर्निंग्स सॉरी सॉरी ईयर वन की ही एडजस्टमेंट है, आप एंट्री ईयर टू में कर रहे हो। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? यही प्रपोज एडजस्टिंग एंट्री टू डेबिट प्रायर ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, ठीक है, और कुछ? नहीं. Okay. Next question. General entry was made by controller on December 31st, year 2. Investment in stock to the investment income. So basically आप subsidiary की income record कर रहे हो. So यहाँ पर अब आप क्या करोगे? इन स्टॉक टू इनकम. ये आपका इक्विटी मेथड है कि जब आपने किसी सब्सिडियरी लाइक कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां की आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो। obtain financial statement of subsidiary. ओके, ठीक है, कुछ चेंज करना है? चेंज नहीं करना, बस खाली वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में डाउट है सेकंड अच्छा। वाले में. ओके, आपका ये वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बिकॉज लाइक डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं, सो समटाइम्स आपके प्रिंसिपल और एस्टिमेट इनसेपरेबल होते हैं, कि एस्टिमेट में तभी चेंज आ रहा है कि जब आप प्रिंसिपल चेंज कर रहे हो। अच्छा. तो इसके केस में आपका ये भी हो सकता है प्रिंसिपल. कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो नहीं चेंज हो रहे, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से ऑब्वियसली आपके एस्टिमेट्स तो चेंज होंगे ही। हाँ. और ये मे बी प्रिंसिपल में ही चेंज होगा ना, इसलिए हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का. और रिवर्स एंट्री का क्या मतलब है? कि आपने जो भी पहले मतलब कर रखी थी मिस्टेक उसे करेक्ट करना चाह रहे हो। अब वो ड्यू टू लाइक एस्टिमेट चेंज होने की वजह से हुई या कोई प्रिंसिपल चेंज होने की वजह से हुई, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला ऑप्शन चूज कर ले. ओके, सो फाइनल आंसर आपका है, बिकॉज जो आप कहोगे, अभी मैं हाँ. आपको आंसर नहीं बता सकती।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ओके वो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। सॉरी, प्रिंसिपल है ऑप्शन में? ऊपर ऊपर है। नहीं, आई थिंक पॉलिसीज ही दे रखे है ना। एक मिनट एक मिनट। हाँ, सो लेट्स गो विद एस्टिमेट देन। हाँ, पॉलिसीज दे रखा है, वैसे पॉलिसीज में ही मतलब ये आ जाएंगी चीजें। एस्टिमेट से फिर रहने देता है। ओके, सो आज अच्छा दिन है, सारे सही आ रहे हैं। थोड़ा इजी आ रहा है ना इसीलिए। यस। इतने ही थे ओके, इसमें क्या? हमने 5 किए, 4 किए? और ही किया है। फिफ्थ ने? अच्छा ठीक है, फर्स्ट हमने शायद किया नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। होगा, पता नहीं। अच्छा ठीक है, लेट्स डू सम एमसीक्यूज देन। ठीक है। सिमुलेशंस तो हो गए बहुत सारे। यूनिट 2 में ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। इसमें वैसे मिक्स आएंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एरो है ना, वहाँ पे सेक। अच्छा अच्छा। हाँ, वो यूनिट 3 नहीं, यूनिट 2 में करो। यूनिट ओके। 3 अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर ये अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में भी एक एरो आएगा आपको। 2B लिखा है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो देखो इधर राइट साइड नीचे एरो है। राइट साइड नीचे एरो। नहीं नहीं नहीं, ऊपर आओ। हम्म। हाँ, 2B दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हाँ। वो ही टेबल में देखो। हाँ देखो, ये नीचे ओपन हुआ। 2B1 एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा टू अच्छा। बी टू तो ये 2B2 जो इंटरनल फैक्टर्स है ना, यही है ना वो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, डिमांड एंड सप्लाई। ओके ठीक है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज करना है। हाँ, मैं वो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है। इंटरनल एक्सटर्नल यही है ना, इसी में है इकोनॉमिक्स हाँ, वाला। आपने एक्सटर्नल चूज किया है अभी, तो सिर्फ अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंटरनल फैक्टर ओके। हाँ, दिस, अरे ये तो सार्बन ऑक्सलेट वाला आ गया। अच्छा देखो, चेक करते हैं। दिस सार्बन ऑक्सलेट रिक्वायर did the financial statement include? ऑल मटेरियल ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और ट्रांजैक्शन। ठीक है, श्योर? नहीं नहीं, एक मिनट, इमटेरियल आएगा या मटेरियल? आपके मटेरियल फाइनेंशियल मटेरियल। स्टेटमेंट में सिर्फ मटेरियल अमाउंट होने चाहिए या सारे? सारे होने चाहिए। ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शंस। ऑफ बैलेंस शीट रिगार्डिंग बताना है आपको। सारे होने चाहिए। सारे का वैसा ऑप्शन ही नहीं। ये ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? कि जो आपकी मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती।
पर वो हम मेंशन तो करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नहीं, they are not basically listed on companies' financial balance sheets. ठीक है, तो ऑल मटेरियल ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज या वो neither. वाला। नहीं नहीं, ऑल मटेरियल ऑफ Okay. बैलेंस शीट। Neither. All material of balance sheet liabilities, obligation, and transactions with unconsolidated entities that have a material effect on the financial condition, changes in financial condition, result of operation, liquidity, company expenditure must be reported on financial statement. They will help the user understand the full scope of the firm's फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ओके, कि कई बार कंपनी कुछ ऐसी लायबिलिटीज उठाती है या कुछ ऐसे लाइक ट्रांजेक्शन्स करती है कि अपने रेशियोज इंप्रूव करने के लिए, सो जो डायरेक्टली बैलेंस शीट पे नहीं दिखाती बेसिकली। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, ये तो आपके सार्बिन से ही आ रहे हैं। Which of the following organization was established by Sarbanes-Oxley Act? So कौन सी बॉडी बनी थी एज अ रिजल्ट ऑफ Sarbanes-Oxley Act? PCAOB। Yes, PCAOB. Okay, correct. Next question. Okay, so which of the following procedure would an auditor least likely perform in planning a financial statement audit? प्लानिंग के टाइम पर आप कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे? Selecting a sample of vendor invoices for comparison to receiving reports। यस, सैंपल सिलेक्शन आपका कब होगा? कि जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो। हाँ। यस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, according to Sarbanes-Oxley Act, anyone who knowingly allowed, destroy, or cover up or making a false entry in the record or document with the intent to obstruct or influence the investigation of any matter within the judicial jurisdiction of any department or agency of the US may be fined or imprisoned for up to. So, कितने सालों की सजा मिल सकती है अगर कोई पर्सन लाइक कोई फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है या डॉक्यूमेंट? 20 years। 20 years. Okay. It's correct. Next question. आपके इसमें नहीं है आप वो वाले questions. In performing the interviews and examining documents related to preliminary work in a financial statement audit of non-issuer, an auditor identify a business risk associated with plans for a new product line. What should the auditor do? So अगर ऑडिटर को कोई बिजनेस रिस्क दिख रहा है, लाइक कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन कंपनी लॉन्च करने वाली है और उससे रिलेटेड कोई रिस्क दिख रहा है, तो क्या करे का ऑडिटर? Analyze the newly identified risk in conjunction with other known business risk and consider whether there is an immediate consequence for the risk of material misstatement at various level of audit। ओके, सी। नहीं नहीं, रुको। ऑप्शन डी। करेक्ट। ऑप्शन सी First, to करेक्ट। analyze the newly identified risk in conjunction with other business risk that have a basically your option C, है हाँ। ना? हम्म, नहीं, ऑप्शन हाँ सी सिलेक्ट। ये आंसर फिर मतलब ऑप्शंस जंबल हो जाते हैं।
अच्छा जब अच्छा, आंसर शो होता है। ठीक है। वैसे आप ऑप्शन सी ही हम पहले सिलेक्ट कर रहे थे। हाँ। According to Sarbanes-Oxley Act, a CEO or a CFO who misrepresent the company finances may be penalized by being फोर्थ ऑप्शन शो करना। रिमूव फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस एंड फाइंड। okay, एक मिनट कर रही हूँ select. Okay. Fine and imprison. Yes, fine and imprison. Okay, like they will be charged fine as well as they can be put behind the bars. ओके। Okay, so in this split of Sarbanes-Oxley Act, the financial statements serve as the A snapshot in time of the financial condition of the entity. snapshot मीन्स कि वो सिर्फ एक बारी की पिक्चर दिखा रहा है, बट अगर आप इनकम स्टेटमेंट कंसीडर करो इट रिप्रेजेंट फॉर द होल ईयर. ओके। The principal means for communicating financial information to those outside the entity. Okay, let me select. Okay. Okay, next. An information system add value to organization by improving all of the following. So basically, information system like can add value by improving all of the following except keep like which is not improved through information system. The quality of products or services. Okay, sure. एक मिनट। The efficiency and effectiveness of the supply chain. It can be improved through information system. कैसे? Okay, so like अगर टाइमली कम्युनिकेशन हो रहा है चीजों का तो that can effectively like improve the functions. अगर इफ सप्लाई चेन यही हुआ ना कि वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक कस्टमर को पहुंचना। हाँ तो अगर इस बीच में कुछ डिले विले आया तो। हाँ, तो अगर वो टाइमली पता चल रही है चीजें तो that can make your operation more effective. ओके। So like what is your call then? I will submit only that answer. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। Okay, so quality नहीं improve कर सकते through IFS. Sorry, it's incorrect. Okay. Customer relation basically. पर ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट पढ़ो. कस्टमर रिलेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू होलसेलर. कि अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये इसकी हाँ। प्रोडक्ट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी और उससे कस्टमर रिलेशन इंप्रूव होंगे. सो डू यू थिंक लाइक इट्स अ करेक्ट आंसर? हाँ लाइक मतलब। मतलब इससे क्या इंप्रूव हो रही है सप्लाई वो नहीं नहीं, से? ये ओके. तो रिवील कर रहे हैं ना हमें कितने में प्रोडक्ट पड़ रहा है कॉस्ट। यस.
ABC Incorporation assessed overall risk of MIS system projects on two standard criteria: technology used and design structure. The following system projects have been assessed on these risk criteria. So, which of the following project hold the highest risk to ABC? So basically, they are assessing their risk on two standard criteria: technology, second is design. So the following system project have been assessed on these risk criteria. So which of the following project hold the highest risk? New technology and sketchy structure. New technology in sketchy structure. Okay. Sure? हाँ. Yes, correct. Okay, last question. Audit committee members of issuer are required under Sarbanes-Oxley Act to maintain which of the following traits? Sarbanes-Oxley Act. फोर्थ ऑप्शन क्या है? Diligence. इंटेग्रिटी Okay. नहीं, डिलीजेंस. So जो भी members होंगे audit committee के, they have to following which of the following trait? डिलीजेंस. Diligence. Okay. इंडिपेंडेंस. ठीक है. क्योंकि audit committee has the role to like overview the whole audit, so they should be हाँ. the independent with respect to the company also. मतलब कोई company में उनका day to day operations में कोई role नहीं होना चाहिए. बट ये ऑडिट कमेटी मतलब वो जो ऑडिट करने वाली है कि कंपनी की नहीं ऑडिट? नहीं, जो बेसिकली इश्यूअर्स के लिए एक ऑडिट कमेटी मैंडेटरी होती है कि हाँ जिसका हाँ. क्या रोल रहेगा कि वो पूरी ओवरऑल ऑडिट को देखेगी कि कम किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, क्या चार्जेस रखने हैं, और मतलब ओके. कोई भी ऑडिटर को प्रॉब्लम आती है तो दे कैन डिस्कस विद द ऑडिट कमेटी. ठीक है. ठीक है. हाँ. ओके, सो एनी डाउट अप टू हियर? नो. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो विद न्यू सिमुलेशंस. ठीक है, कल तक मेरा यूनिट 4 हो जाना चाहिए, तो फिर यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे. ओके. ओके. थैंक यू. गुड नाइट. बाय. बाय. गुड नाइट.